Shall we start? Ready, all of you? Yes? Okay, fine. So you should be on your page 53 of the new textbook. And it is our chapter number 10, Earth's internal composition and land forms. Now, we all know that Earth is round in shape. Yes or no? ये हमने उसमें भी ओल्ड सिलेबस में भी पढ़ा था that Earth is round in shape. Right? Now, if this is our Earth, and we know that we all human beings live over here, right? हम लोग यहाँ सरफेस पे रहते हैं. फिर on the earth we have lot of land area also, we have lot of water area also. All these things you know. Yes? Yes? Better response देते रहो, otherwise I will think that you are not listening at all. Okay, so you know that on the surface of the earth there are human beings, there is land, there is water, but in this chapter we are going to go inside the earth. The internal composition. Composition means how the earth is made up of. अगर हम earth को dig करके अंदर जाएंगे तो वहाँ पर क्या है? That we are going to learn in this chapter. Okay? And land forms. What do you mean by land forms? We know that the whole earth surface is not flat. ऐसा land नहीं है. If you travel तो थोड़ा flat है, फिर mountains है, फिर plateaus है, फिर valleys है, फिर water है, फिर बहुत सारा desert area भी है. There are so many forests also. Have you seen all these features on the land? All of you? Yes or no? Okay, so all these things, whether it is a mountain or a plateau, valley, water, desert, trees, ये सभी चीजें आती है under the title land forms. Okay, तो अर्थ के बाहर की तरफ है land forms और अर्थ के अंदर की तरफ जो भी है that we are going to learn in this chapter. Are you clear with the title of the chapter? Okay. As per the first title, Earth's internal composition. पहले हम लर्न करेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है. When you dig the earth, what you find. Okay, let's start the reading part. Have a pencil in your hand. Writing the meanings of hard words here itself. Okay. चलो, any doubts? मैडम कौन कर रहा है? Who's there? Who is having the doubt? Okay, fine. Let's start. नहीं बेटा, उसमें बहुत देर लगेगी एक तो. No बेटा, you have got the books right now itself. You have lot of syllabus complete. So reading इस बार तो मैं ही करूँगी. नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे अगर हमारा कोर्स स्पीड में आगे जाता है तो. Okay? निसर्ग, turn on the video. Jay, turn on the video. Okay, let's start the reading part. Our Earth is such a planet on which developed life is seen. Now, you know that Earth is the only planet where life is there. Have you heard this thing before? Students, can you listen to me? So, Earth is the only planet where life is there. Like the other celestial bodies, the shape of the earth is also round. Celestial bodies. Underline the word celestial. Underline the word celestial, meaning which is there in the space or in the heaven, heavenly bodies. You know that in the space there are many things. जैसे sun है, planets है, satellites है, meteors है, comets है, dust particles है, so many things are there, right? So like all the bodies, like all the celestial bodies, like all the space bodies, the shape of the earth is also round. Earth भी round है. It is constantly changing inside and outside. Earth internally भी change होता है, externally भी change होता है. Now external मतलब आज सर्कल है, कल स्क्वायर हो गया, परसों ट्राइंगल हो गया, नॉट लाइक दैट.
But wherever there are mountains, they keep changing the shapes. अगर आपको पता है hundreds of years before, which mountains are there in the north of India? हिमालयास. तो बहुत सालों पहले, thousands of years before, वहां पर एक सी हुआ करता था. Okay, there was a sea. And then there was a very powerful earthquake, और earthquake में इतने सारे cracks हो गए that the water of the sea submerged, वो अंदर चला गया, and there happened to be a shape like a mountain, जिसको हम बोलते हैं Himalayan mountains. Can you understand? So this is how the earth keeps on changing internally, sorry, externally. तो लैंड फॉर्म्स में जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं द आउटसाइड चेंज ऑफ द अर्थ. आउटसाइड चेंज का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि शेप चेंज होता है. ओके, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट इज देयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? कभी आपको ऐसा लगता है कि अर्थ को डिग करके अंदर जाकर देखे कि अंदर क्या क्या है? डू यू नो व्हाट इज देयर इनसाइड? What is there? अगर डिग करेंगे तो बहुत सारे पत्थर होंगे, रॉक्स होंगे, मिनरल होंगे, लावा, यस लावा है, वाटर भी है, यू फाइंड वाटर ऑल्सो. ओके, so now we are going to learn that what is there inside the earth. Man and Nisarg. I cannot see you. Jay, Daksh, Vraj, all of you turn on the videos. So the title is Interior of the Earth. The interior of the earth is made up of several layers arranged one on the top of the other like an onion. I think you all have seen an onion. Onion देखा है आपने? Yes, and we know that onion has layers one after another, right? कभी आपने उसको कट किया है या फिर कभी जब मम्मी कट कर रही है और आपने देखा है तो उसमें लेयर होते हैं वन बाय वन. ओके, तो जैसे उसको अगर आप डिग करोगे, पोपटराज, when you dig the earth, निसर्ग, देर इज अ लेयर वन आफ्टर अनदर. तो अनियन में तो कितने सारे लेयर्स होते हैं, है ना? कभी 8, कभी 10, कभी 15. बट व्हेन यू गो इनसाइड द अर्थ वी हैव ओनली 3 लेयर्स. अर्थ के इतने सारे 15, 16, 17 लेयर्स नहीं होते. सो सपोज इफ दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड व्हेन यू डिग इनसाइड तो यू कैन सी 3 लेयर्स. सबसे पहला पतला वाला, फिर एक बड़ा सा, और फिर एक उससे भी बड़ा. ओके, और उसको अगर आप सर्कल में देखो तो दिस इज अवर अर्थ. व्हेन यू डिग इट इनसाइड दिस इज द फर्स्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट. क्या बोलते हैं? क्रस्ट. फिर नीचे का लेयर है मेंटल. व्हाट इज इट? मेंटल. एंड द इनर मोस्ट लेयर जो सबसे अंदर है इट इज नोन एज द कोर. ओके, अब कोर जो है इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द आउटर कोर एंड द इनर कोर. आउटर कोर एंड इनर कोर. तो जस्ट लाइक एन ऑनियन the earth also has layers one after one, and these layers are of 3 types. The first one is the crust, then mantle and core. And core is divided into inner core and outer core. Do you understand this, all of you? Okay, let's go to the textbook again. The interior of the earth is made up of several layers arranged one on top of the other like an onion. The uppermost layer of the earth is called crust, जो हमें already पता है. It is the thinnest of all the layers. Mantle thick है, core उससे भी thick है, सबसे पतला है crust. मतलब आप अगर अर्थ को डिग करना शुरू करोगे तो crust जो है वो फटाफट से खत्म हो जाएगा और सीधा mantle स्टार्ट हो जाएगा. Okay? It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses. 35
kilometers. So suppose if this is our earth, and if you dig the earth, then up to 35 kilometers you have the crust. ठीक है, और 36 किलोमीटर से शुरू हो जाएगा मेंटल. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? यस, यहाँ पर लिख दिया है इट इज अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस. कॉन्टिनेंटल मासेस मीन्स लैंड. ये पूरा साथ में अंडरलाइन करो, कॉन्टिनेंटल मासेस, और उसका मीनिंग लिखो लैंड. कॉन्टिनेंटल मासेस मीनिंग लैंड. हैव यू रिटन द मीनिंग? हाँ बोलो बेटा, व्हाट इज योर डाउट? यस यस, 35 किलोमीटर तो फर्स्ट लेयर है बेटा. अभी आप कितना अंदर जा सकते हो पता है? मोर देन 6000 किलोमीटर्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. 35 किलोमीटर्स का तो फर्स्ट लेयर है, दैट इज द थिनेस्ट वन. अभी तो हम 6000 किलोमीटर्स अंदर जाने वाले हैं. ओके, यस राज. ये क्या बोल रहा है, कोई मुझे लाउडली बता सकते हैं? अंश आप बताओ, व्हाट इज राज स्पीकिंग? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. द टेम्परेचर इज सो हाई. वहां पर इतना टेम्परेचर होता है दैट वॉट एवर मिनरल्स आर देयर इट स्टार्ट्स गेटिंग मेल्टेड. अगर आप कोई व्हीकल लेके पर अंदर जाओगे तो व्हीकल भी मेल्ट हो जाता है. ओके राज, सो डायरेक्टली वी कैन नॉट टिल द अर्थ. एम आई क्लियर राज? समझ में आ गया? Yes, Purva, there is lot of lava and magma in the core, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. Okay? Yes. Now listen. हाँ बोलो, बोलो अंश. Now that how can we know बेटा? अभी हमें शाम को क्या होने वाला है वो भी नहीं पता. फ्यूचर इज नेवर एक्सपेक्टेड. हो सकता है कि कोई इन्वेंशन हो जाए, कुछ रास्ता मिल जाए और साइंटिस्ट जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट टिल टुडे वी कैन नॉट गो डाउन. कितना पता है? 12 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग अंदर नहीं जा सकते. ओनली 12 किलोमीटर्स. उससे आगे द टेम्परेचर इंक्रीजेस सो नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो देयर. Okay, now have you written the meaning? Continental mass meaning land. Yes. Okay, now you know that the earth is not equal everywhere. Suppose if this is our here we have land and here we have water. ओके, तो अभी अर्थ को अगर हम फ्लैट ड्रॉ करें, सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो हियर वी हैव अ माउंटेन, हियर इट इज अ फ्लैट लैंड, एंड रुको कलर चेंज कर दे तो आपको थोड़ा ज्यादा ठीक से समझ में आ जाएगा. ये लैंड है फ्लैट, ठीक है, और यहाँ पर है वाटर. ओके, नाउ सपोज इफ हियर वी हैव वाटर, तो हम देख सकते कि दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, इसके ऊपर माउंटेन है, यहाँ पर लैंड है. लेकिन अगर पानी है तो ये सरफेस थोड़ा नीचे चला जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? राइट. तो इफ देयर इज वाटर ऑन द अर्थ, जो जगह पर पानी है तो वहां पर अर्थ यहाँ खत्म नहीं होगा, यहाँ खत्म होगा. ठीक है, और हमारा क्रस्ट जो है, द क्रस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, ये हमारा 35 किलोमीटर. तो एक्चुअली दिस 35 किलोमीटर इज फ्रॉम द लैंड,
From land, if you dig the earth, it is 35 kilometers तक crust आएगा. But if there is a mountain, अगर आप माउंटेन के ऊपर हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको डिग करके बीच में से यहाँ तक जाना पड़ेगा. Then the crust will start. So this can be up to 70 to 80 kilometers. And if you are in the water, तो वाटर में पहले तो आप बॉटम तक जाओगे, फिर यहाँ से आप डिग करना शुरू करोगे, तो जस्ट विद इन 4 to 5 किलोमीटर द क्रस्ट स्टार्ट्स. समझ में आ रहा है? तो क्रस्ट तो यहीं पर है, लेकिन आप ऊपर से कहाँ से डिग करना स्टार्ट करते हो, दैट डिसाइड्स द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट. कैन यू अंडरस्टैंड? इफ यू आर डिगिंग फ्रॉम द सिंपल लैंड, देन इट इज 35 kilometers. If you are starting from the mountain, then it is as far as 80 kilometers. And if you are from the bottom of the ocean, then only 5 kilometers and the crust is there. Am I very clear? All of you, समझ में आ रहा है? Yes? Am I clear? ठीक है, अभी ओके, लिसन. मैं फिर से बोल रही हूँ. ये 80 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, ये आपको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू? यस और नो? Okay, so in short, the size of the crust from the surface of the earth is 35 kilometers एवरेज. ठीक है, ये एवरेज है. क्यों? क्योंकि अगर आप माउंटेन में से डिग करोगे तो इट विल बी नॉट 35 बट मोर, अप्रोक्सीमेटली 80. अगर लैंड एरिया से डिग करते हो देन 35 जो हमने ऑलरेडी दिया है. बट सपोज इफ देयर इज अ वाटर एरिया, तो सबसे पहले तो पानी जहाँ पर खत्म होता है और लैंड जहाँ से स्टार्ट, पानी का तो आप खोद नहीं सकते, लैंड ही डिग कर सकते हो. तो फर्स्ट यू विल गो इनसाइड द वाटर, देन यू विल डिग द लैंड, गो इनसाइड अगेन, एंड देन द क्रस्ट विल स्टार्ट. ओके, सो the approximate thickness of crust from a land area is 35 kilometers. Am I very clear, all of you? अभी समझ में आया? Okay, now second thing. तो अभी हमने क्या लर्न किया कि this is the surface of the earth, this is the crust. Okay? ये है हमारा लैंड और ये है हमारा वाटर. अगर वाटर ऐसे जा रहा है तो ये सरफेस यहाँ पर होगा, वाटर वाला सरफेस यहाँ से होगा. ओके, लैंड से इतना दूर आओगे फिर क्रस्ट शुरू होगा, वाटर से इतना दूर आओगे फिर क्रस्ट शुरू होगा. ओके, नाउ व्हेन यू डिग द अर्थ, व्हेन यू आर गोइंग इनसाइड द अर्थ, देन ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, देयर यू विल फाइंड सम मिनरल्स. एंड व्हाट आर दैट मिनरल्स? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. और इसीलिए उसको बोला जाता है Cl. क्या बोला जाता है? What do you speak it? Cl, meaning silicon and aluminium. But when you go inside the water and then you dig the land, और तब आप नीचे जाते हो तो there you find silicon and magnesium, and so this part is known as Saima. What is it known as? Saima. सीमा नहीं बोलेंगे, Saima. Okay, so to conclude, on the earth we have land area, we have water area. When you dig the land, you get silicon and aluminium known as Cl. When you dig the bottom of the water area, you get silicon and magnesium, which is known as Saima. So is it very clear the difference between Cl and Saima, all of you? Yes or no? Okay, go back to the textbook again. Crust is the thinnest of all the layers. It is about 3
35 kilometers on the continental masses. What do you mean by continental masses? What do you mean by continental mass? Land. Very good. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Cl, that is SiAl. So now you very well know what is Cl. Okay? The oceanic crust consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima, Sima. Any doubts in Cl and Sima? Anybody? Raj? ओके, सीएल साइमा में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द इंटीरियर गिवन टू यू. अगर आप पिक्चर देखोगे तो यू कैन सी देयर आर 3 कलर्स शोन. अर्थ का अगर एक आप पीस निकाल लो केक की तरह, हम लोग केक कट करते हैं, ऐसे केक को कट करके ट्रायंगल निकालते हैं, तो केक के अंदर जो लेयर्स है, एक वेनिला का लेयर है, बीच में जैम डाला है, फिर ब्रेड का लेयर आएगा, फिर चॉकलेट का लेयर आएगा. यू कैन सी व्हाट इज देयर इनसाइड द केक व्हेन यू कट द केक. यस और नो? तो सिमिलरली पिक्चर में भी अर्थ का एक पीस निकाल के हमको दिखाया है कि हाउ डज इट लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड. Okay, you can see there is black color, there is brown color, and there is red color. Can you see the 3 colors, black, brown and red? हाँ, येलो रखो, ब्राउन रखो, कलर तो आपको 3 दिख रहे हैं ना? ओके, नाउ यू कैन सी दैट ब्लैक कलर वाला जो एरिया है दैट इज वेरी थिन, सबसे पतला वो है, और उसका नाम क्या है? द लेबलिंग इज डन, टेल मी. क्रस्ट. वेरी गुड. फिर उससे थोड़ा बड़ा है ब्राउन कलर वाला पार्ट. व्हाट इज द नेम पार्ट? मेंटल. ओके, एंड द इनर मोस्ट पार्ट, रेड कलर पार्ट, इट इज द बिगेस्ट वन. एंड द इनर मोस्ट पार्ट, रेड कलर जो सबसे बड़ा है, दैट इज नोन एज कोर. और आप देख सकते हो कि कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब डिविजन्स. कोर में एक इनर कोर भी है, आउटर कोर भी है. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? अंश, ठीक है. तो अभी हमको क्या याद रखना है? दिस इज आवर अर्थ. फिर सबसे पतला वाला जो फर्स्ट लेयर है दैट इज क्रस्ट. उससे थोड़ा थिक वाला जो है दैट इज मेंटल. और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा जो है वो कोर. एंड कोर इज सब डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर. ओके, विल यू रिमेम्बर ऑल द नेम्स? यस. नाउ अगर ये जो साइज है हमारी पूरी, ये क्रस्ट, ये मेंटल और कोर की जो साइज है, अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, when you convert in the percentage, you can see the box given to you. Know this, only 0.5% of the size of the earth is a solid crust. So suppose if this is our earth, ऐसा मान लो कि ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ में सिर्फ इतना पोर्शन 0.5% is only the crust. Then 16% is the mantle. इतना सा पोर्शन 16% is our mantle. और बाकी का पूरा जो पोर्शन है 83%, that is the core. So do you understand how much area is covered by which layer? Crust, mantle and core, all of you? Yes or no? Yes. Now we all know everything about the crust. Crust के बारे में हमें पता चल गया. It is approximately 35 kilometers from the surface of the earth. अगर लैंड को डिग करो तो वी गेट सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. वाटर के अंदर जाकर डिग करोगे तो वी गेट सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रस्ट. अगर अब क्रस्ट के नीचे जाओगे, देन विच लेयर विल बी फाउंड बिलो द क्रस्ट?
मेंटल। तो अभी हम जाएंगे मेंटल की तरफ। यस बेटा, आउट। एवरीथिंग इज फाउंड इन द क्रस्ट इटसेल्फ, बिकॉज क्रस्ट के नीचे आप जैसे ही जाओगे मेंटल में, तो मेंटल में तो एवरीथिंग इज इन द मोल्टन फॉर्म। वो तो तभी बाहर आता है जब वो वॉल्केनो इरप्ट्स। यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन अ वॉल्केनो इरप्ट्स? यस, यस, लावा। तो वो सभी चीजें लावा में से, अगर आपने वॉल्केनो देखा है वीडियो में या कहीं पर भी देखा है, तो आपने देखा होगा कि इट इज हॉट फायर एंड लिक्विड, है ना। एक लिक्विड, रेड कलर का लिक्विड, ऑरेंज कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा हो, ऐसा दिखता है हमें, है ना। इसको हम बोलते हैं लावा। तो एक्चुअली अंदर जो मेल्टेड मोल्टन फॉर्म में जो मटेरियल है, दैट इज कमिंग आउट। और वो तो बाहर आके वापस उसके बाद ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। बट ऑल द मिनरल्स मोस्टली आर फाउंड इन द क्रस्ट इटसेल्फ। ओके देय? यस राज, व्हाट इज योर डाउट? यस राज। ओके, पेट्रोल इट अगेन, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट जो मिनरल्स हम माइनिंग करके निकालते हैं फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, तो उसमें से एक ऑयली सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, राइट। क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड बहुत सारी चीजें। Then this crude oil is taken to the filter plant. It is filtered, it is purified, and the pure petrol is taken out. Okay, Raj? Okay, fine. Now let's see the paragraph given to us. Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 kilometers. अभी हमें तो पता है कि mantle जो है वो crust से बड़ा है. Okay, so if this is the surface of the earth, ये surface है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसके नीचे 35 किलोमीटर नीचे जाओगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्रस्ट। और उसके नीचे 2900 किलोमीटर तक का जो लेयर है, दैट इज नोन एज मेंटल। मतलब 35 किलोमीटर तक क्रस्ट, starting from 36 kilometers up to 2900 kilometer extends your mantle. Okay, so can you imagine what is the thickness of the mantle, all of you? Yes or no? Yes or no? Yes. और फिर उसके बाद 2901 किलोमीटर से अर्थ के सेंटर तक होगा हमारा कोर। ओके, यस, लेट अस रीड इट अगेन. Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 kilometers. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometers. Now, do you study radius in maths? Yes, radius जो है वो सर्कल का ही होता है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल में रेडियस नहीं होता. From the center of any up to the corner, इतने मेजरमेंट को हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है. अब अगर ये हमारा अर्थ है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, तो इतना डिस्टेंस, सिर्फ कोर का रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ कोर इज 3500 किलोमीटर्स. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां से यहां तक का रेडियस कितना होता है, और उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, मतलब ये पूरा अर्थ का साइज आएगा. तो इससे वी कैन इमेजिन दैट हाउ बिग द अर्थ इज. समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना सा जो कोर है हमारा, उसका रेडियस इट इज 3500 किलोमीटर. तो पूरा अर्थ कितना बड़ा हो सकता है? यस और नो? आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द अर्थ. जस्ट वेट. You can imagine what is the size of the earth? Yes?
Yes. So if this is the earth and this is the crust, तो crust में हमें क्या मिलता है? Cl and Sima. वो तो आपको याद है ना, what is Cl and what is Sima. लेकिन अगर आप कोर में जाओगे तो कोर के अंदर यू गेट निकल एंड फेरस, इसीलिए उसको बोलते हैं नाइफ. वो छुरी चाकू वाली नाइफ नहीं, NIFE. नाउ FE फेरस. फेरस को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं आयरन. आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड द नेम आयरन. यस, आयरन का साइंटिफिक नेम है फेरस. ओके, साइंटिफिकली आयरन इज नोन एज फेरस. तो व्हेन यू गो इनसाइड द कोर, कोर के अंदर हमको मिलता है निकल एंड आयरन, जिसको बोलते हैं फेरस. एंड सो इन द कोर द मेन मटेरियल फाउंड इज nickel and ferrous, meaning knife. Do you understand this thing, all of you? Nickel is a mineral, beta, which is used for further industrial purposes also. Okay? Now, आपको एक डाउट होगा कि कोर तक तो हम जा नहीं सकते, तो हाउ कैन यू कम टू नो दैट देयर इज नाइफ इनसाइड? But the answer is the volcanic eruption. Whenever the volcano erupts, what is there inside will come out. जो अंदर है वो ही बाहर आएगा. तो बाहर volcanic eruption में बाहर क्या आता है? Lot of nickel, lot of iron. And due to this, it is proved that there is knife inside the core.